ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਪਿਓ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਚੀਜ਼। ਦੋਸਤੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਠਿਨ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਤ ਉਨੀ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਜਵਾਬ ਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ ਮੇਰੇ? ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਿਖਾ ਦਿੰਨਾ। ਇਹ ਬਾਈਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ 16 ਸਾਲ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈਗਾ, ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਜ਼ਬਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਕਿਰਦਾਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਜ਼ਬੇ ਦੇ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ। ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਗੌਰਵ। ਇਹਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਹੈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਗੌਰਵ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਤੇ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਖੁਆਬ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਖੁਆਬ ਨੂੰ ਕਦੀ ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਖੁਆਬ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਿੰਗਾਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁਆਬ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਛੂ ਸਕੇ। ਗੌਰਵ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ, ਬੜੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤੇ ਬੜੀ ਲਾਜਵਾਬ ਚੀਜ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੋਚ ਕੀ ਸੀਗੀ? ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦਾ ਕੈਮਰਾ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਛੱਡਤਾ, ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ دیਵਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਗਾਰੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾ ਹੁੰਦਾ, ਹੌਸਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਕਸਦ ਕੀ ਸੀ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? सर ये मेरे को बाइक चलाने का शौक़ था पहले, तो पहले इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट किया था 3 साल पहले। तो फिर उससे मतलब मन भरा मेरा कि इलेक्ट्रिक में इतनी सर्टिफिकेशन नहीं हो रहा, स्पीड माइलेज कुछ नहीं मिल रहा। तो फिर 2020 में मैंने कंप्लीट बाइक बनाई जो बाइक से मतलब कम पैसों में हो, मतलब आधे से भी आधे, मतलब इतना इसमें खर्च लगा है और बाइक से ज़्यादा इसमें फ़ीचर है। नॉर्मल बाइक में जो होते हैं वो तो सारे मैंने डाले, बट उससे ज़्यादा थोड़े इसमें मैंने इंक्रीज़ करके फ़ीचर डाले हुए। ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ 16 ਸਾਲ ਹੈ। जी सर। 16 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਰੁੱਝੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਸਕੂਲ ਜਾਈਏ, ਪੜ੍ਹੀਏ, ਲਿਖੀਏ, ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਬਾਈਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਪਿਓ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਕਿ ਬੱਚਾ ਕੀ ਪਤਾ ਫੇਲ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਮਦਰ ਫਾਦਰ ਵੀ ਇਹੀ ਸੋਚਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ? जी जी सर, पहले था कि मैंने जब इलेक्ट्रिक में बनाने का उसको सोचा था तब थोड़ा सा मतलब वो था कि इलेक्ट्रिक कैसे बनेगी, बन नहीं पाएगा क्योंकि इसमें कॉस्टली भी ज़्यादा लगते हैं, कम से कम मतलब पैसे ज़्यादा लगते हैं। अगर वो वेस्ट हो गए तो फिर मतलब पूरी मेहनत ख़राब हो जाएगी। इलेक्ट्रिक में थोड़ा सा उनका था कि वही नहीं अभी नहीं कर सकते, बाद में तो सोचेंगे। बट जब इलेक्ट्रिक मैंने बना के उसको रोड पे चलाया, फिर जब मैंने ये बाइक बनाने के लिए सोचा तो उन्होंने कभी नहीं रोका मेरे को बाइक इस बाइक के लिए। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਅਗਲਾ ਟਾਇਰ ਜੇ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਅਗਲਾ ਟਾਇਰ ਹੈਗਾ ਸਾਈਕਲ ਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੁਰਜੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੈਂਡਲਬਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਹੈਂਡਲਬਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ? ਕਿਹੜੇ ਸਮਾਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਭੱਜ ਦੌੜ ਕਰਦੇ ਰਹੇ? ਕਿਹੜੇ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਗਾ ਦਾਂਗਾ? ਰਾਤੀ ਸੌਣ ਲੱਗਿਆਂ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਸੁਪਨੇ ਇਹਦੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਕਰਨੀ ਹੈ? जैसे सर आपने सपने की बात की है, रात को सर जैसे मैं कोई पार्ट लेके आया हूँ मार्केट से, कोई भी मतलब कबाड़ी से पार्ट लेके आया हूँ, जो दिन में सोचता था इसमें बिल्कुल नहीं फिट हो रहा, वो रात को जब सपने में सोचता था उसके बारे में, मतलब एक उसका मैकेनिज़्म ही, मतलब जैसे इंजीनियर्स तो डायग्राम बना लेते हैं, कोई भी कुछ भी मतलब कंप्यूटर में डायग्राम बना लेते हैं, डिज़ाइन कर लेते हैं, बट मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं। फिर सपने में जैसे आपने बोला कि सपने में उसका मतलब डायग्राम एक कंप्लीट ही बन जाता था कि मॉर्निंग में बस वो आइटम मेरे को लेके फिर उसको लगा देनी है, मतलब उसका वर्क है वहाँ पे, मतलब अच्छे से काम करेगा वो चीज़। तो मैंने जितने भी इसमें पार्ट्स लिया सारा कबाड़ी मार्केट से, जो थोड़ा पार्ट्स साइकिल का हो गया, बाइक का हो गया, मतलब इसमें अलग अलग बाइक और साइकिल का मतलब पार्ट्स लगा हुआ है इसमें। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤਿਆਰ ਹੋਏਗੀ ਇਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇਗੀ, ਇਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਡਾਇਗਰਾਮ ਜੋ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਚੀਜ਼ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਉਂਦੀ। कि ये बाइक ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆਈਆਂ? हाँ जी सर, जब ये इलेक्ट्रिक में मेरे पास खड़ा हुआ था, मतलब चला नहीं रहा था इलेक्ट्रिक में, जब ये इंजन, सबसे पहले मैं इसका मतलब इंजन ही लेके आया जिससे ये काम करेगा। जब मैं इंजन घर पे लेके आया, कंडीशन इसकी काफ़ी ख़राब थी, इसको मतलब सर्विसिंग की, ठीक किया, इंजन को वर्केबल बनाया। बट सर इंजन जब साइकिल के पास रखता था मैं, इसकी साइकिल की बॉडी के पास, उसे लगता था कि ये इंजन इसके लिए काफ़ी बड़ा है,
तो मैंने सोचा कि मोपेड वगैरह का इंजन ले लो। बट जब सर इसमें मतलब पूरे स्केप मैंने डिसेंबल किए पार्ट साइकिल को फ्रेम का उल्टा किया, वेल्डिंग वगैरह उसके पार्ट्स बनाए, तो सर अभी लगता है कि ये इंजन जो है इसी साइकिल के लिए बना हुआ है। पहले से मतलब लगता था कि ये फिट नहीं हो पाएगा, बट ये अभी हमें लगता है कि भाई मतलब ये इसी के लिए सक्सेसफुल था इंजन, इसमें फिट आने के लिए। इस पे पैसे कितने लगे, खर्च कितना आया? सर ये मेरे को बाइक टोटल 16,000 में पड़ी है। इसमें मैंने जो नॉर्मल 17 हज़ार रुपये की बाइक्स आती है उनसे मतलब कम लागत में और उसी की तरह मतलब एक फीचरेबल बाइक बनाई है। गौरव, जे कोई ਇਹਦਾ ਚੰਗਾ ਦਾਮ ਦੇਵੇ, ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਰਕਮ ਦੇਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹਨੂੰ ਵੇਚੋਗੇ? नहीं सर, एक्चुअली ये मेरी फर्स्ट मतलब प्राइस ही कह लो, एक बर्थडे का साइकिल है, तो मैं मतलब ये मेरे पास मतलब 2007 से आ रहा है चलता, और उसकी इसी के ऊपर मॉडिफिकेशन कर रहा हूँ। पहले मैं साइकिल भी चलाता था, वो भी नॉर्मल थी मेरे पास, उसमें भी कम से कम गाने थे, लाइट्स थी, इंडिकेटर्स था, मतलब साइकिल भी पैडल वाली चला रहा था, तो उसमें भी मतलब वो भी नॉर्मल नहीं थी। अभी मैंने इसको कंप्लीट बाइक बना लिया, यूनिक सी चीज़ है। बट अगर कोई बनाने के लिए कहे तो मैं इसी की फर्स्ट कॉपी बना सकता हूँ, मतलब इसकी कॉपी बन जाएगी, बट ये फर्स्ट मॉडल है तो ये मेरे पास ही रहेगा। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੌਰਵ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਣਨ ਦੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮਾਪਿਓ ਦੇ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਖੌਫ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਹਰ ਮਾਪਿਓ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਗੌਰਵ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਗੌਰਵ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰ ਆਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ। ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਬਾਈਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਪਿਓ ਜਦੋਂ ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬੱਚਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਾ, ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਬਚਪਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਇਹਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਗੌਰਵ ਬਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਭੰਨ ਤੋੜ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰੇ ਮੋਬਾਈਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਠੀਕ ਕਰਾਉਣ ਦੀ, ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਘਰੇ ਹੀ ਕਾਰੀਗਰ ਬੈਠਾ ਤੁਹਾਡੇ। जी सर। ਕੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਕਹਾਣੀ? ये सर जैसे छोटा बचपन में था, माता जी थे हमारे, वो इनका बहुत प्यार करते थे, तो वो मेले वगैरह में से खिलौने वगैरह देते थे, तो इनको मॉडिफाई करता था सर, इस खिलौने से इस खिलौने में कुछ वो करना, या जो भी मतलब तोड़ के। ये कुछ जैसे घर का थोड़ा बड़ा हुआ सर, इसको एक मैंने साइकिल जो ये है सर, इसको बर्थडे गिफ्ट किया, तो इसमें इसने छोटे से नहीं बचपन में मॉडिफाई करना शुरू कर दिया सर, कुछ म्यूजिक लगा लिया या छोटा मोटा जो भी होता रहा। आज से 4 साल पहले सर इसने ये साइकिल मैंने गांव में भेज दिया था सर। भाई गाँव में क्यों भेज दिया था आपने? सर ये रोड पे मैं सोचता था भाई रोड पे ना निकले, जब ज़्यादा ही छोटा था सर, 10 साल के करीब का, भाई रोड पे ना निकले ये, तो डर लगता था सर, क्योंकि चंडीगढ़ में थोड़ा स्पीड ज़्यादा है सर, तो ये गांव में भेज दिया। गांव में से फिर 1 साल बाद इसने बोला कि मंगाया, फिर इसने वो इलेक्ट्रिक बाइक बनाई बैटरी वाली, तो अभी ये इस साल इसने ये तैयार किया सर। ਗੌਰਵ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਚੱਲ ਯਾਰ ਵਿਆਹ ਤੇ ਚੱਲੀਏ, ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈਗੀ, ਉੱਥੇ ਚੱਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੂੰ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਖਰੀਦ ਲੈ, ਤੂੰ ਨਵੇਂ ਚੱਪਲਾਂ ਲੈ ਲੈ, ਬੂਟ ਲੈ ਲੈ ਨਵੇਂ, ਉਦੋਂ ਗੌਰਵ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ? गौरव सर इस चीज़ में कहता था कि मेरे को पैसे दे दो, इसके कपड़े का या किसी बूट का सर शौक नहीं है, इसको किसी भी चीज़ का, सिर्फ इस चीज़ का शौक है सर, इसमें मॉडिफाई करने का, सारा पैसा इसमें लगाता है, ये नगद ले लेता है सर हमसे, जाता ही नहीं सर कहीं पार्टी वगैरह में, किसी फंक्शन में लाइक नहीं करता सर कभी। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਸੀਗੀ, ਗੌਰਵ ਤੇ ਯਕੀਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੁਝ ਕਰਿਸ਼ਮਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਦਿਖਾਏਗਾ? सर जब ये तैयार कर रहा था तो मैं इसके पास नहीं गया था, इसको 2-3 दिन तक, जहाँ पर ये 43 में इन्होंने वेल्डर से कोई सामान किराए पे लिया हुआ था, तो मैं इसको देखने भी नहीं जाता था। एक दिन ये थोड़ा खाना वगैरह इन्होंने नहीं खाया, तो फिर मेरा दिल पे बड़ा जोर पड़ा, फिर मैं इनके पास गया, मैं खाना तो खा लो यार, तो उस टाइम ये लगे रहते इसमें। एक ये था, एक मेरा साले का लड़का हुआ था, छोटा बच्चा है वो इसका हेल्प करता था, सामान पकड़वाना या कुछ वो करना सर। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ, ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਗਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਤੂੰ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗ, ਤੂੰ ਕੋਈ ਚੱਜ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਕਰ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰੋਕੋ, ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ, ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦਾ ਪਿਆ? नहीं सर, मेरे को बोला था इस चीज़ में, भाई वो इन चीज़ों में ध्यान लगा रहा है, अभी पढ़ाई का टाइम है, कुछ पढ़ लेगा कुछ बन जाएगा, तो अब मैंने भी इसको बहुत डांटा सर पढ़ाई के बारे में, अब नहीं माना तो फिर जी सर। ਅੱਛਾ ਗੌਰਵ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ, ਸੱਚੀ ਦੱਸਣੀ ਹੈ, YouTube ਤੇ ਨੈਟ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੈ? यूट्यूब पे देखता था कि पहले मेरे पास पैसे नहीं थे हाथ में, बिल्कुल भी नहीं, बस इनको देख देख के मन
भर लेता था कि भाई हाँ ये चीज़ ऐसे हो सकती है। बट ये है कि मतलब उनका पेमेंट भी मतलब बाहर बनाते हैं, वो विदेश में बना रहे हैं, वो तो फटाफट कर देते हैं, वीडियो में दिखा देते हैं कि ये ऐसे हो गया, फटाफट मतलब वीडियो को फास्ट करके दिखा देते हैं। बट इतना भी इजी नहीं है कि मैंने जब बनाया ये मेरे को काफ़ी टाइम लगा, इसमें सामान भी इसका अलग अलग जगह से लिया, मतलब अलग अलग पार्ट लिया। बट ये यूट्यूब से इतनी हेल्प नहीं मिल पाई मुझे कि जो मैं करना चाहता था कि वो अलग ही नेक्स्ट लेवल पे कर रहे हैं, अपना पैसे भी काफ़ी ज़्यादा लगा रहे हैं। बट मेरे को ये है कि चीपेस्ट बाइक बनानी थी एक, मतलब कम खर्चे में एक अपनी खुद की बाइक बन जाए। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ, ਸਮਝ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਇੰਜਨ ਨੂੰ ਤਾਰਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜੋੜਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਘਰੇ ਹੀ ਮੋਬਾਈਲ ਜੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹੋ ਪੇਚ ਤੇ ਤਾਰਾਂ ਤੂਰਾਂ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੰਢਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਜੋੜਨੀਆਂ ਹੋਵਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੇਸ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਟੈਂਕੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸਿਪਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸੋਚ, ਇਹ ਵਿਚਾਰ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਤਰਫ ਆਇਆ ਕਿ ਤਾਰਾਂ ਵੀ ਜੋੜਨੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੰਟ ਵੀ ਬਾਈਕ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕਿੱਥੋਂ ਜਾਏਗਾ ਉਹਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਚ, ਇਹ ਸਮਝਦਾਰੀ कित्थों आती है? सर एक्चुअली पहले मेरे पास साइकिल था, साइकिल का ये होता था कि मार्केट में आपको पता है जो मैकेनिक होते हैं वो भी काफ़ी पैसे ले लेते हैं। उनके पास एक दो बार जाके उनसे जो मतलब सीखने को मिला, घर में खुद ही मतलब ट्राई करना, साइकिल का काम मैंने अपने आप ही सीखा। साइकिल का सीख के फिर उसके बाद मेरे को 2018 में बाइक मिल गई। बाइक को मैंने कम से कम 50-60 बार तो खोल चुका घर में भी, उसमें मोडिफिकेशन करता रहा अपने आप ही, मतलब खोल के उसको चेक किया कि वो वर्क कैसे कर रहा है, काम कैसे कर रहा है अपनी बाइक में। मतलब ये है कि मतलब कहीं से मतलब सीखा नहीं, बट अपने आप ही कर के मतलब अपने आप ही सीख गया मैं। एक चीज़ दसो, ये सिंगल सीटर है, ਤੁਸੀਂ ਡਬਲ ਸੀਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਦਿਮਾਗ ਹੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਿੰਗਲ सीटर ही बनानी है? एक्चुअली सर पहले भी मैंने इलेक्ट्रिक भी सिंगल सीटर ही बनाई थी, क्योंकि सर अभी इतना मतलब मेरे जैसे तो आपको लगता है इसमें दो बैठ कर आराम से चले जाएंगे, बट ये सिंगल सीटर इसलिए बनाई क्योंकि एक स्पोर्ट बाइक के मतलब जैसे स्पोर्ट बाइक में आप देखते हो कि एक ही बंदा बैठता है आराम से, तो उसी की मैंने लुक कर देने के लिए इसमें मतलब कोशिश की है इसमें, तो इसलिए सिंगल ही बनाए। बड़ी सारी दुनिया ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਨੌਕਰੀ ਕਰੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਨੂਨ ਹੈਗਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪੁਰਜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਬਾਈਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜੋ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਸ ਜਨੂਨ ਨੂੰ ਜੇ ਪੈਸਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਜਨੂਨ ਤੋਂ ਜੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਣੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸੋਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ ਨਾ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ, ਕਈ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ ਸੋਚਣਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕੁਝ ਅਲੱਗ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਕਰੀਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨੂਨ ਹੈਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ? हाँ जी सर, मेरे को भी मतलब काफ़ी लोग जैसे मेरे फ्रेंड्स हो गए, रोड पे भी लाइटें वगैरह पे कई बार रेड लाइट होते खड़े हो जाते तो पूछते हैं कि इसको सेल करोगे, तो मैं मना कर देता हूँ कि नहीं सेल नहीं करूँगा, इसकी अगर आपको इसकी जैसी बनवानी है तो मैं बना दूँगा, तो वो मेरे से नंबर भी लेके जाते हैं। तो ये है कि मकसद ये है कि उनको भी एक चीपेस्ट बाइक प्रोवाइड हो जिसमें मतलब बाइक से ही फीचर हो, बस उनको माइलेज भी अच्छा मिले और बाइक से सस्ती भी हो। आजकल की बाइक आप देखोगे 1-1 लाख की आ रही हैं, पर उसमें फ़ायदा तो कुछ है नहीं, बस इसमें एक कंप्लीट बाइक इसलिए अभी हम कह नहीं सकते इसमें क्योंकि इसका जो फ्रंट टायर है वो भी छोटा है, साइकिल का है। ਅੱਛਾ, ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਝਿਜਕ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਯਾਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਏ, ਪਹਿਲੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਕਿਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ? सर पहले मैंने मांगे थे, मम्मी को पापा से कभी नहीं बोला मैंने पैसे के लिए, मम्मी को ही जाके बोलता था कि पापा को बोलो कि मेरे को ये काम करना है। अब मम्मी अपने ही मतलब समझाते हैं, वो क्या तो पापा ना समझे हो, बट फिर भी जैसे नॉकडाउन आप लग गया तो मैंने मतलब ये अगर हम पापा से मांगने से तो वो भी इतना कहाँ से अफोर्ड कर पाएंगे एकदम से, तो फिर नॉकडाउन की वजह से मैंने कहीं पे वर्क किया, मतलब सर्विसिंग की दुकान पे काम किया, तब अर्निंग करके ये बाइक मैंने खुद ही बनाई है। सर्विसिंग ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ? ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ? मैंने 1 मंथ काम किया वहाँ पे। जो ऊपर की पेमेंट थी जैसे 3-4 हज़ार रुपये, वो मैंने पापा से बाद में ले लिए, मतलब कंप्लीट बाइक बनाने के बाद जो उनका वेल्डिंग का किराया था वो मैंने सिर्फ पापा से लेके दे दिया।
ਅੱਛਾ, ਸਰਵਿਸਿੰਗ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਮਕਸਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿ 4 ਪੈਸੇ ਜੁੜ ਜਾਣ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗਾ? हाँ जी, क्योंकि उस टाइम जब लॉकडाउन लग गया था तो ऑनलाइन क्लासेस आपको पता चलने स्टार्ट हो गई थी। तो मैं पापा के साथ ही बैंक में चला जाता था, तो वहीं पे मैं अपना जो भी ऑनलाइन का काम आता था, होमवर्क वगैरह आता था, वो करना स्टार्ट हो जाता। तो मैं अपनी घर पे जैसे इलेक्ट्रिक खड़ी है, वो उसमें प्रॉब्लम आ रही थी कि मतलब हम चला नहीं पा रहे थे उसको, बैटरी हर बार चेंज करनी पड़ती थी उसकी। तो मैंने सोचा कि मतलब अब पापा से पहले मैंने बात भी की इस बारे कि मेरे को उसको रिपेयर करना है, ठीक करना है इलेक्ट्रिक में। फिर पापा ने मेरे को बोला कि हर साल तो इसमें नई बैटरी लगा रहा है, उसका फ़ायदा तो हो नहीं रहा। कि फिर मैंने अब मतलब सोचा कि जैसे जानते हैं मेरे को लोग, कोई भी मतलब बोलता है कि गौरव ये काम कर सकता है, तो मेरे को एक कॉल आया था कि तुम काम करना चाहते हो सर्विसिंग का। तो फिर मैंने भी सोचा हाँ चलो, अगर कोई बुला रहा है काम के लिए तो फिर मैं भी आगे बढ़ता हूँ। तो इसी मकसद के लिए मतलब मैंने 1 महीने तक वहाँ पे काम किया। ਜਦ ਆਪ ਕਿਸੇ ਕੇ ਨੀਚੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਬਕੇ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ, ਆਰਡਰ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, जी जी ਇਦਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? हाँ जी सर, वो पूछते से हम कोई भी चीज़ रिपेयर कर रहे हैं, वो मेरे से पूछते थे कि तुमको आती भी है ये। अगर अब सर मतलब सारे ही बोलते थे कि तुमको आता भी है, तुमको कुछ मतलब ख़राब कर देगा, तू ये चीज़ मत कर। बट ये है कि अगर मैं इस बाइक को उनके पास लेके जाता हूँ तो वो मेरे को अभी भी फ़ोन करते हैं, कोई भी उनसे ज़्यादा मतलब सोल्व ना हो प्रॉब्लम तो मेरे को फ़ोन करते हैं कि गौरव आ जाए, ये प्रॉब्लम सोल्व करके चला जाओ। ਹੁਣ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਈਕ ਕਿਉਂ ਖਾਸ ਹੈ? ਬਾਈਕ ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਤੁਸੀਂ ਕਬਾੜ ਸਮਝ ਕੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਉਸ ਸਮਾਨ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆ ਪਿਛਲਾ ਸਿੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸਿੱਪਰ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਦਿਮਾਗ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਟੈਂਕੀ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਫਰੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਕਰਾਮਾਤੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਓ, ਇਹ ਇੰਜਨ ਕਿਹੜੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ? ये इंजन बजाज सिटी 100 का है, जो नॉर्मल के विदाउट की सेल्फ आती थी उनका इंजन है। हाँ जी। ਇਹ मीटर ये जो नीचे का पोर्शन है सर, ये चेतक का है, जो नॉर्मल स्कूटर आते थे उनका है। जो ऊपर का पोर्शन मैंने स्प्लेंडर का लगाया इसमें, ताकि क्रोम की थोड़ी फिनिशिंग आ जाए। जो उसकी आपकी हेडलाइट है सर, ये जो मडगार्ड होते हैं ना सर, वो बाइक के मडगार्ड नॉर्मल वाले, उनको कट करके बाइक के फेस का शेप बनाया मैंने। इसका नॉर्मल ये हैंडल है, बाइक का कोई हैंडल नहीं है, साइकिल का ही यूज़ कर रहा हूँ मैं इसमें। और जो ये आप ये देख रहे हो टैंक टाइप का आपको दिख रहा है, ये गाड़ी की जो वेस्ट नंबर प्लेट होती है वो मैंने यहाँ पे यूज़ की है। जो उसके साइड के पैनल है वो साइकिल के मडगार्ड यूज़ किए मैंने यहाँ पे। जो आपकी ये सीट आपको दिख रही है, होंडा स्टैंडर्ड की सीट है ये। और जो इसका पीछे का पोर्शन है, बजाज चेतक का जो बैक रेस्ट आता है, मैंने उल्टा करके इसमें यूज़ किया। और जो इसका आप ब्लैक कलर का पोर्शन देख रहे हो, वाइज़र होता है सर, पल्सर का वाइज़र जो आगे का होता है फेस का, तो मैंने इसको बैक में यूज़ किया। जो इसके इंडिकेटर आपके आप इंडिकेटर यूज़ करें तो यहाँ पे जो बच्चों के छोटे छोटे खिलौने होते हैं, मैंने उनको यूज़ किया है यहाँ पे। इसके फ्रंट और बैक के मडगार्ड की बात की जाए तो सर, ये जो फैट बाइक आती है मोटे टायर वाली, उनके मडगार्ड मैंने यूज़ किया है। और उसका फुट रेस्ट भी सर मतलब इतना खास नहीं है। जो साइकिल का हैंडल होता है, मैंने उल्टा करके इसमें इसका फुट रेस्ट कन्वर्ट कर दिया सर इसमें। ਅਗਲਾ ਟਾਇਰ ਵੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਦੁਕਾਟੀ ਵਰਗੀ ਬਾਈਕ ਬਣਾਈ ਹੈ। हाँ जी सर, वो थोड़ा स्पोर्टी लुक ताकि आगे से थोड़ी नीचे है ना सही, तो स्पोर्टी लुक आ जाता है। ਅੱਛਾ ਦੋਸਤੋ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੱਸਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰਾਈਡ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਬਾਈਕ ਤੇ, ਇਹਦੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਈਕਲ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਥੱਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲਗਵਾਈ ਇਹਦੀ? ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰੇਕ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਸਿਸਟਮ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਹੀ मतलब ਕੀ ਇਹਦਾ? सर क्योंकि जो चैसीज़ होती है, कंपनीज बनाती है चैसीज़, मतलब पीछे से ही बन के आती है। उसमें हर एक मतलब मतलब चीज़ बनाई जाती है कि कहाँ पे कौन सी चीज़ फिट होनी है, क्योंकि वो डिज़ाइन पहले से ही होके आती है। तो इसमें सर ये साइकिल का फ्रेम था, तो मैंने मतलब इंजन एक तरह से इसमें फ़िट किया। जो फ्रेम इसमें निकल के आया, तो उसमें ये था कि भाई पैर वाले ब्रेक्स लग तो सकते हैं, बट इतना मतलब पैर के ब्रेक्स मतलब नॉर्मल बाइक में होते हैं, सारे में होते हैं। तो मैंने इसमें एक हाथ में ही कर दिया सारे। कॉम्बी ब्रेक सिस्टम किया BS6 में जो आ रहा है, एक ब्रेक प्रेस करेंगे तो दोनों मतलब थोड़े थोड़े लगेंगे। एक बड़ा लाजवाब शेर हैगा। शायर कहता है कि कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। ये कहानी गौरव दी है। गौरव हीरो है इस कहानी का। हीरो इस करके है क्योंकि अलग जिहड़ा दुनिया तो सोचता है या अलग जिहड़ा अपने अंदर जज्बा पालदा, नाम उहदा ही हुंदा ते रहिंदी उम्र तक दुनिया उस नूं याद करदी है। ये बाइक है, मुंडे ने आप तैयार कीती है। सर्विस दी दुकान ते लग के
ਥੱਲੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ, ਕੰਮ ਸਿੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਗੌਰਵ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੰਕਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਬੜਾ ਹੀ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ ਗੌਰਵ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਭਵਿੱਖ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਸਮਾਜ ਡਗਮਗਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਅਮਰਜੋਤ, ਮੈਂ ਸੀਗਾ ਲੰਕੇਸ਼ ਤ੍ਰਿਖਾ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਦੇ ਲਈ।